Okay, hello. Good morning, everyone. Am I audible to all of you? Yes, you are audible. यस बिल्कुल आप आवाज सुन रही हैं आप स्टार्ट Good morning, sir. And good morning, everyone present here. A very warm welcome to everybody present here. I feel privileged to be the anchor of my first webinar and host of this beautiful event. And the topic of this webinar will be Chakras Ignite the Healing Power. जो आज का हमारा सेशन होने वाला है उसमें हम बताएंगे कि किस तरीके से जो चक्र हैं उनको यूज करके हम अपने आप को हील कर सकते हैं। तो हमारी जो शरीर है उसके अंदर 114 चक्र होते हैं और उन 114 चक्रों में से 7 मेन चक्र ऐसे होते हैं जिनके ऊपर अगर हम काबू पा लें तो हम कुछ भी आसानी से कर सकते हैं और अपने आप को भी हील कर सकते हैं। So now let me introduce myself. I am Bhumika Rawal, student of BA's second SEM, Media and Mass Communication Department, NIMS University, Rajasthan. And this webinar is all about Reiki. ये वेबिनार रेकी के बारे में है। ये रेकी जो है एक जापानीज टेक्निक है जहाँ पर हम एनर्जी का यूज करके अपने आप को हील करते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स भी रेकी का इस्तेमाल करते हैं अपने पेशेंट्स को ठीक करने के लिए, एक थेरेपी की तरह भी यूज किया जाता है। And I also welcome Dr. Sarika Takhar, HOD, Media and Mass Communication Department, NIMS University, Rajasthan, Mr. Vinod Soni, Assistant Professor, Media and Mass Communication Mass Communication Department, NIMS University, Rajasthan, Jaipur. And I also thank a very special thanks to Media and Mass Communication Department, NIMS University, Rajasthan, to provide platforms to the student to stand by their own and create their own programs. Now, in this webinar session, हमारे इस webinar session में कुछ certain ground rules भी हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप सभी वो ground rules follow करें। Rule number 1 हमारा ये है कि सबसे पहले तो ये वाला जो सेशन होने वाला है वो बहुत ही हाई एनर्जी का सेशन होने वाला है। थोड़ा तो आवाज आप कम सभी हेलो हाँ, तो जो हमारा सेशन होने वाला है ये एक बहुत ही हाई एनर्जी सेशन होने वाला है, तो हम यही चाहेंगे आपसे कि आप भी अपनी एनर्जी हाई रखें। सेकंड रूल ये है कि आप मल्टीटास्किंग ना करें और ना ही डिस्ट्रैक्ट हो। हम नहीं चाहते कि हमारे सेशन में जुड़े कोई भी मेंबर एक भी पार्ट इस सेशन का मिस करे, क्योंकि ये सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। एंड थर्ड थिंग, यू शुड कीप दिस सेशन इंटरेक्टिव। आपको इस सेशन को इंटरेक्टिव बनाए रखना है। टू वे कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं, आप इसमें चैट बॉक्स का यूज कर सकते हैं अगर आपको हमारे स्पीकर से कुछ भी बात करनी है। And as I am not the main speaker of this event, so I would like to invite and welcome the fountainhead of creative ideas who have worked more than 14 years in banking professional. He is a parenting coach, Reiki practitioner, and life skill trainer and internationally certified business coach, Mr. Abhilash Sampath. Please give him a big round of applause, and I request you, sir, to please forward this session ahead. I will welcome you, sir. Yeah, thank you, all of you. As team faculty, I'm thankful to Bhumika for giving me this platform, and Dr. Sarika Thakkar, Dr. Vinod Soni, and Mr. Raj Mishra for giving me this platform to spread the knowledge of Reiki, chakra healing. I think so. हम सबको जरूरत है इस दौर में, to balance ourselves, right? So before we go ahead, थोड़ा सा मैं परिचय देना चाहूँगा. I will just share the screen with you all. Just allow me a minute. Okay, Bhumika, is the screen visible? Yes, sir, it is visible. Okay. So thank you very much, all of you, for having me here and allowing me to share the knowledge of chakras. इसका महत्व क्या है हमारी जिंदगी में? I'll try to keep the session in Hindi. So myself, Abhilash, I'm been an ex-banker by profession. I was working with as an operations head with Citibank Mumbai. For the past 14 years, I was working in the banking industry.
I'm a life coach, business coach, parenting coach, and also a corporate trainer, and also Reiki practitioner. So आज का सेशन होगा हमारा स्पेशली अबाउट कि कैसे हम अपनी जिंदगी को बैलेंस कर सकते हैं, हाउ वी कैन बैलेंस आवर लाइफ थ्रू बैलेंसिंग द चक्रास, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस थ्रू रेकी, राइट. सो रेकी के बारे में हम डिस्कस करेंगे और चक्रास के बारे में गहराई से जाएंगे, समझेंगे चक्रास के बारे में क्या है, राइट. सो वेलकम यू टू गुरु स्कूल्स एंड शी इज मनीषा अग्रवाल जो हमारी रेकी मास्टर है. मैंने भी इनसे रेकी सीखा हुआ है. इन 2019 शी रिसीव्ड द इंडियाज एक्सीलेंस अवार्ड. अगर आप रेकी सीखने के लिए इच्छुक है तो मनीषा जी आपको रेकी सिखाती है, राइट. एंड शी आल्सो इज ऑथर बाय प्रोफेशन. द थर्ड डूड की किताब है. हम बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, बच्चों के लिए प्रोग्राम, सॉफ्ट स्किल्स. आज का फोकस होगा रेकी एंड चक्रा हीलिंग के ऊपर, राइट. तो आइए शुरुआत करते हैं अबाउट रेकी. इससे पहले मैं थोड़ा जानना चाहूंगा आप सभी से. आई जस्ट वांट टू इंटरेक्ट विद ऑल ऑफ यू. जस्ट अ मिनट. या सो बिफोर आई गो अहेड आई वांट टू नो फ्रॉम अ फ्यू ऑफ यू कि हैव यू हर्ड अबाउट चक्रास, रेकी. You are free to interact, you know. Let us keep an interactive session, right? Anybody can unmute yourself and discuss in case anybody wants to speak about Reiki or something. और आप चक्रा अपने से आप को अनम्यूट कर सकते हैं और सर के साथ में एक इंटरेक्टिव सेशन बिल्डअप कर सकते हैं. तो अगर आपको रेकी के बारे में कुछ भी पता है तो प्लीज आप उसकी इंफॉर्मेशन जरूर दें. about Reiki और चक्रास. यस सर, रेकी के बारे में हमने काफी सुना है कि हम इससे जो हमारी पॉजिटिव एनर्जी है, जो भी कोई इंसान डिप्राइव्ड है किसी एनर्जी से, तो हम उसको वो एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं. इफ वी हैव पॉजिटिव एनर्जी वी कैन ट्रांसफर आवर पॉजिटिव एनर्जी टू द नेगेटिव वन, या जिसकी बहुत डिप्राइव्ड हो चुकी है. तो Absolutely. ये प्रोसेस के बारे में सुना है. और जहाँ चक्र की बात है कि हमारे शरीर में जो चक्र होते हैं उनको जागृत करके कुंडलिनी जागरण और इनके बारे में सुना है, बट अभी तक पर्याप्त आप कह सकते हैं कि अभी तक इनके बारे में ज्ञान नहीं है. Okay, great. Thank you very much. So let us start the session now with thank you note. So at least I know कि audience, as an audience you know about it. Just a minute. Let me present the screen. Okay. So before we go ahead for Reiki, हम समझते हैं about the principles of Reiki. रेकी की में जुड़ने से पहले हम जब रेकी सीखते हैं तो ये सारे 5 नियम होते हैं जो हमें फॉलो करना पड़ता है, राइट. तो ही इज डॉक्टर मिकाओ उसुई, द फादर फाउंडर ऑफ रेकी. रेकी हम जानते हैं इसे जापानीज हीलिंग टेक्निक, बट आई विल गो मोर इनटू रेकी लेटर ऑन. बट ये 5 प्रिंसिपल्स आपने भले रेकी सीखा हो ना सीखा हो, इफ यू फॉलो दिस 5 प्रिंसिपल्स इट विल क्रिएट अ शिफ्ट इन योर लाइफ. तो प्रिंसिपल्स ऑफ रेकी में कहते हैं जस्ट फॉर टुडे डू नॉट वरी, आज के लिए चिंता मत कीजिएगा. जस्ट फॉर टुडे डू नॉट गेट एंग्री, राइट. चिंता और क्रोध, ये दो नेगेटिव इमोशंस है which create lot of havoc in our life, right. It invites a lot of psychosomatic illnesses, right. So honor your parents, teachers and elders. ये तीसरा नियम है. तो रेकी जब भी हम इन्वोक करते हैं हमारे मास्टर्स को, पूर्वजों को याद करते हैं, दैट्स अ वेरी गुड, एक बहुत अच्छा प्रथा होता है. अर्न योर लिविंग ऑनेस्टली, राइट. इंटीग्रिटी को बहुत बड़ा स्थान दिया गया है रेकी में. शो ग्रेटिट्यूड टू एवरीथिंग. ट्रस्ट मी माय डियर फ्रेंड्स, बिफोर लर्निंग रेकी आई वाज नॉट प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड. ग्रेटिट्यूड का मतलब है आपका जो एग्जिस्टेंस है इस धरती पे, जो भी अचीवमेंट आपको मिल रहा है, छोटी से बड़ी अचीवमेंट के लिए यू शुड ऑलवेज बी थैंकफुल, राइट. सो हमको सिखाया जाता है कि व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग यू शुड थैंक योर बेड, you should thank your universe, thank your parents, spouses or people around you, right. start appreciating more, right. जितना आप gratitude देंगे यूनिवर्स में उतना blessings आपको मल्टीफोल्ड मिलना शुरू हो जाएगा, right. very very important exercise of gratitude. ये 5 नियम है. अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिएगा, and trust me you will see the shift in your life, right. हम समझते हैं अभी रेकी क्या है, राइट. सो रेकी इज अ नेचुरल हीलिंग सिस्टम, राइट. हम सभी के पास एक नेचुरल हीलिंग सिस्टम मौजूद है बाय बर्थ, राइट. आप बिलीव नहीं करेंगे कि हमारे हाथों में, हमारे पाम्स में ऑलरेडी 5 to 15, किसी में 5%, किसी में 10% तक रेकी नेचुरल हीलिंग पावर्स मौजूद होते हैं, राइट. रेकी सीखने के बाद वी जस्ट एक्टिवेट द एनर्जी हीलिंग प्रोसेस. हमारा जो हीलिंग सिस्टम है उसको 95-99% तक हम बढ़ाते हैं. दैट्स व्हाट द रेकी एग्जैक्टली डज. मैं छोटा एग्जांपल देता हूँ आपको. जब भी आप आपको सीवियर हेडेक होता है, राइट. यू हैव सीवियर हेडेक और स्ट्रेस, आप नॉर्मली अपने टेम्पल्स पे हाथ रख देते हो, सर पे हाथ रख देते हो, आपका सर दर्द धीरे धीरे कम होने लगता है. ये क्यों होता है? बिकॉज आपके पाम्स में ऑलरेडी हीलिंग पावर मौजूद है. इट कनेक्ट्स विद यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, यानी कि आप
एनर्जी यूनिवर्स एक स्टोर हाउस है, राइट? उसमें बहुत सारा अपार शक्तियां हैं। नॉर्मली रेकी में हम उस यूनिवर्सल स्टोर हाउस से एनर्जी हार्नेस करते हैं और लोगों को हील करते हैं, राइट? यू जस्ट ए चैनल टू हील अदर्स। आप अपना एनर्जी यूटिलाइज नहीं करते हो किसी को हील करने के लिए जब आप रेकी सीखते हो। आपके अंदर के जो वाइटल एनर्जी है वो कंटिन्यूसली, आपको मालूम है, वी ऑल नो कि हमारे बॉडी में कंटिन्यूसली प्राणिक एनर्जी फ्लो होता रहता है कंटिन्यूसली, राइट? कभी भी ये प्राणिक एनर्जी फ्लो होना बंद हो जाता है तभी डिजीज मैनिफेस्ट होना शुरू होता है बॉडी में, कोई भी किसी भी पार्ट पे, राइट? व्हेन यू लर्न रेकी और कंटिन्यूसली अपने आप को हील करते हो तो प्राणिक एनर्जी का फ्लो बरकरार रहता है एंड यू रिमेन डिजीज फ्री। दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ रेकी। रेकी एक बार आपने सीख लिया तो जिंदगी भर रेकी आपके आपके साथ रहता है। इट रिस्टोर्स योर बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, राइट? आपके आपके सारे पैरामीटर्स को बैलेंस करता है। इट कैन नॉट बी यूज फॉर नेगेटिव पर्पसेस, यानी किसी को मैनिपुलेट करने के लिए, कोई गलत चीज़ों के लिए आप रेकी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। अनएथिकल पर्पस के लिए यू कैन नॉट यूज रेकी, राइट? व्हाट इज नॉट रेकी? रेकी कोई रिलीजन नहीं है। बहुत सारे कंफ्यूजन्स लेके हमारे पास लोग आते हैं, बिकॉज फॉर द पास्ट 1 or 2 years वी आर ऑलरेडी ट्रेनिंग रेकी। हमने बहुत सारे ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट किया रेकी के ऊपर। लोगों में बहुत सारे कंफ्यूजन है कि रेकी कोई रिलीजन है, कोई हिप्नोसिस है, कोई माइंड कंट्रोल है कि नहीं, राइट? बट रेकी से प्योर एनर्जी हीलिंग टेक्निक। होम टू ट्रीट, सबसे पहले तो मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ हर एक व्यक्ति को रेकी सीखना बहुत जरूरी है, राइट? वी ऑल नीड टू लर्न रेकी। यू नो, हमारा मिशन भी यही है गुरु स्कूल्स का कि हर घर एक हीलर, राइट? ये हमारा मिशन के तहत हमने एक मुहिम छेड़ी है। यहाँ पे मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ आप हीलर बनो ना बनो, बट एटलीस्ट लर्न रेकी फॉर योर ओन पर्सनल ग्रोथ। आपके खुद के पर्सनल ग्रोथ के लिए एटलीस्ट फॉर पीपल अराउंड यू कैन लर्न रेकी। हम ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहे हैं, कोविड है, बाकी सारे प्रॉब्लम्स है, बट लर्न रेकी फॉर योर ओन पर्सनल ग्रोथ। अगर आपको बेनिफिट मिलता है देन यू कैन आल्सो बिकम अ हीलर, राइट? आपके फैमिली और फ्रेंड्स को हील करने के लिए कर सकते हो। प्रेग्नेंट वुमेन पे अच्छा काम करता है। एनिमल्स, बर्ड्स एंड किड्स, राइट? एनिमल्स, बर्ड्स और बच्चे नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी पे ऑपरेट करते हैं। आपने देखा होगा बच्चों को, दे आर एट ए वेरी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, वेरी डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। रेकी में नॉर्मली आपका एनर्जी लेवल, नॉर्मली रेकी का एनर्जी लेवल बच्चों का और एनिमल्स और बर्ड्स के फ्रीक्वेंसी से बहुत मैच करता है, राइट? दैट्स द रीजन उन पे बहुत अच्छा असर करता है। प्लांट्स, आपके घर में कोई प्लांट्स है, यू नो, मुरझाए हुए पौधे हैं, उनको रेकी दे सकते हो। हमको सिखाया जाता है कि कैसे फूड को, खाने को कैसे चार्ज करना है, आपके घर में पानी है उसको कैसे चार्ज करना है। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स तक पे रेकी काम करता है। मैं छोटा सा एग्जांपल हमेशा देता हूँ हमारे पार्टिसिपेंट्स को। एनर्जी इज एवरीवेयर, राइट? रेकी वर्क्स ऑन ए प्रिंसिपल कॉल्ड मॉर्फिक रेजोनेंस। मॉर्फिक रेजोनेंस का मतलब है हमारे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में जितने भी एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, वो एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं तो कम्युनिकेट करते हैं, राइट? तो एग्जैक्टली दिस रेकी वर्क्स ऑन दिस पर्टिकुलर साइंस। सो मैं छोटा एग्जांपल देता हूँ आपको कि रेकी नॉन लिविंग थिंग्स पे कैसा काम करता है, बिकॉज एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी। आपने सिद्धांत सुना होगा, प्रिंसिपल सुना होगा, राइट? सो मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि सभी घर पे गद्दा होता है, बेड होता है, राइट? जब हम नया खरीदते बेड को तो वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, सपल होता है, राइट? इट्स वेरी सॉफ्ट बिकॉज ऑफ कॉटन इज प्रॉपर्टी। कुछ समय बाद, तकरीबन 2 या 3 साल बाद, वो गद्दा आपका सख्त हो जाता है। व्हाई इट हैपेंस? बिकॉज योर पिलो और योर बेड इज द बिगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ नेगेटिव एनर्जी, राइट? आप जाने अनजाने आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा, शायद आप कभी स्ट्रेस के जरिए या कभी थके मांदे आप घर पे आते हैं, सो जाते हैं, मॉर्निंग में टोटली फ्रेश। व्हाई इट हैपेंस? बिकॉज ऑल द नेगेटिव एनर्जी इज एब्सॉर्ब बाय योर पिलो एंड योर बेड। कुछ समय बाद वो गद्दा भी सख्त हो जाता है, पिलो कभी कभी काला पड़ जाता है, बिकॉज इट एब्सॉर्ब्स द नेगेटिव एनर्जी द मोस्ट। इसलिए पुराने जमाने में एक प्रथा हुआ करता था जहाँ पे डंडे से या लाठी से पीट के हम लोग बेड पे मारते थे नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करने के लिए, राइट? सो एनर्जी इज एवरीवेयर अराउंड यू, आपके आसपास। रेकी सीखने के बाद आप ये भी सीखते हैं कि घर का ऑरा कैसे क्लेंस करना है, राइट? आपका घर में जो ऑरा है, आपके आसपास जो एनर्जी है, वो आपको बहुत इंपैक्ट करता है। आपने देखा होगा किसी जगह पे आप जा रहे हो, यू नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, किसी व्यक्ति के पास जा रहे हो, यू नॉट फीलिंग वेरी एट ईज, राइट? आप कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हो किसी के साथ। किसी के नए व्यक्ति के साथ भी मिल रहे हो, यूर, आपको ऐसा लगेगा कि आपका, यू नो, आप बरसों से जानते हो उस व्यक्ति को, आपका एनर्जी मैच हो रहा है उनके साथ, राइट? इट्स ऑल अबाउट एनर्जी व्हाट यू डीलिंग विद, राइट? बेनिफिट्स ऑफ रेकी आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत बढ़िया है। ट्रस्ट मी, रेकी मैं चाहता हूँ और हमारा मिशन भी है कि हर एक व्यक्ति को रेकी सीखना चाहिए अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए, राइट? तो वर्ल्ड विल बी बेटर प्लेस टू लिव इन। कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत बढ़िया है। फियर एंड एंजाइटी को ओवरकम करने के लिए बढ़िया है। लेट्स अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ रेकी। आई विल कम टू द चक्रा पार्ट, राइट? जो मेन चीज है, आई विल कम टू दैट। तो बट अंडरस्टैंड करते हैं कि रेकी क्या है, राइट? तो हम सब जानते हैं कि रेकी इज अ जापानीज हीलिंग टेक्निक, वी ऑल नो दैट, राइट? बट बहुत कम लोग जानते हैं कि रेकी का आविष्कार इंडिया में ही हुआ था, राइट? लॉर्ड गौतम बुद्धा को हम जानते हैं, ही वाज द बिगेस्ट स्पिरिचुअल साइंटिस्ट ऑन अर्थ। उन्होंने 2 चीजों का आविष्कार किया था, एक रेकी और एक विपासना,
विपासना कहीं ना कहीं तो इंडिया में विलुप्त हो गई थी. इट वाज फॉलोड इन म्यांमार, राइट, बर्मा, आई थिंक सो. तो वहां से गोयनका साहब ने वापस से इंडिया में लेके आए. विपासना अगर आपने नहीं सीखा हो तो विपासना ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल आर्ट, इज बेसिकली वर्किंग ऑन योर ब्रेथ, राइट. और सिमिलरली रेकी भी सीखा, ऋषि मुनि जो गौतम बुद्धा थे वो प्रैक्टिस करते थे पुराने जमाने में. ये भी कहीं ना कहीं तो विलुप्त हो गए, बिकॉज ये भी गुरु शिष्य परंपरा से ही हम सीखते थे पुराने जमाने में, राइट. और इसका जिक्र लोटस सूत्रास में भी है कि लॉर्ड गौतम बुद्धा अपने शिष्यों को, डिसाइपल्स को, या किसी गरीब किसी बीमार व्यक्ति को स्पर्श चिकित्सा से, टच हीलिंग से वो हील करते थे रेकी द्वारा, राइट. इसका जिक्र लोटस सूत्रास में भी है, यू कैन रीड अबाउट दैट. कहीं ना कहीं तो विलुप्त हो गई रेकी, राइट, बिकॉज ये गुरु शिष्य परंपरा से फैलती है. आज भी वो गुरु शिष्य परंपरा से ही आप सीख सकते हो. यू कैन नॉट लर्न इट थ्रू एनी अदर कोर्सेज, थ्रू बुक्स आप नहीं सीख सकते हो, राइट. सो डॉक्टर मिकाओ उसुई was a professor in Japanese university a long time ago. तो उनके स्टूडेंट से उनके सवाल पूछा कि डॉक्टर साहब एक बात बताइए, पुराने जमाने में लॉर्ड बुद्धा या लॉर्ड जीसस लोगों को रेकी द्वारा हील करते थे या लोगों को स्पर्श चिकित्सा से, टच हीलिंग से हील करते थे. दे वर आल्सो ह्यूमन बीइंग्स. हम ये सब क्यों नहीं कर सकते? व्हाई वी कांट डू दिस? सो डॉक्टर मिकाओ उसु ने सोचा इसके बारे में. ही वाज आल्सो रिसर्चर बाय प्रोफेशन. वो इसके डिस्कवरी के निकल पड़े. वो बहुत सारे कंट्रीज गए उसको रिसर्च के लिए, राइट. चाइना, तिब्बत, जापान, इंडिया में भी आए थे वो. उनको कोई सक्सेस नहीं मिला. अल्टीमेटली ही वेंट बैक टू, किसी एक मॉन्क ने, टिबेटन मॉन्क ने को कहा आप जापान में ही जाइए, एक माउंटेन पे, एक वाटरफॉल के नीचे आप तपस्या कीजिएगा 21 डेज के लिए. तो ही सैट बिलो ए वाटरफॉल फॉर 21 डेज, फास्टेड फॉर 21 डेज, एंड 21 दिन के बाद उनको बहुत सारे विजुअल्स मिले, बहुत सारे सिंबल्स उनको दिखाई दिए 21 डेज के बाद, राइट. तो ही वाज वेरी हैप्पी बिकॉज ही हैड रीडिस्कवर्ड रेकी फॉर द वर्ल्ड, राइट. यानी कि रेकी जो लॉस्ट हो गया था उनको उस समय रेकी की अनुभूति हुई. ही डिस्कवर्ड ऑल द सिंबल्स. वो इतने खुश हुए कि वो पहाड़ी से दौड़ पड़े लोगों को बताने के लिए. दौड़ते दौड़ते उनका पैर एक पत्थर से टकराया और खून बहने लगा. और पहला हीलिंग का एक्सपीरियंस उनको तभी हुआ जब उन्होंने अपने आप को हीलिंग दिया. उनका घाव जो था भर गया. देन ही वेंट टू हिज विलेज, नेटिव विलेज. अपने गांव में गए, बहुत सारे गरीब व्यक्तियों का मुफ्त में इलाज करने लगे. ही यूज्ड टू हील लॉट ऑफ पुअर पीपल फॉर फ्री. उनको बाद में एक बुरा एक्सपीरियंस हुआ कि मैं फ्री में हीलिंग दे रहा हूँ मगर सामने वालों को उसका कदर नहीं है. तो उन्होंने रियलाइज किया, ये एक रेकी का लॉ भी बन चुका है कि व्हेनेवर यू आर हीलिंग समबडी, अगर आप भी रेकी सीखने के पश्चात किसी को हील करना चाहते हो तो it's like you cannot do it for free, right? You have to take some energy exchange. Energy exchange का मतलब it can also be a fees, right? तो जैसे डॉक्टर्स फीस चार्ज करते हैं अपने क्लाइंट से, वैसे ही रेकी प्रैक्टिशनर्स कैन चार्ज एनर्जी एक्सचेंज with their clients, right? It's very important. So ये एनर्जी बैलेंस करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, राइट. सो दैट्स व्हाई हम हमेशा कहते हैं कि रेकी प्रैक्टिशनर्स स्टैंड पैरेलल टू डॉक्टर्स. शायद आप डॉक्टर्स नहीं बन पाए होंगे, बट रेकी प्रैक्टिशनर्स के जरिए हमारे भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, वो हॉस्पिटल्स में ऐसे ऑल्टरनेट हीलिंग के जरिए लोगों को हील भी कर रहे हैं फॉर वेरियस एलिमेंट्स, राइट. तो रेकी विश्व प्रसिद्ध हो गया, बहुत सारे डिसाइपल्स हुए मिकाओ उसुई के. एंड देन जापान, कनाडा, चाइना, यूएस, ये सब जगह पर रेकी क्लिनिक्स है, रेकी हॉस्पिटल्स है आज के दौर में, राइट. सो थोड़ा सा बेनिफिट समझ लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स. आज का दौर है जहां पे हम कोविड से जूझ रहे हैं, द वायरस इज म्यूटेटिंग इटसेल्फ. सबसे इंपॉर्टेंट चीज बनता है कि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाए, राइट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर हो जाए. वी आर डेफिनेटली मैं ऑब्वियसली रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि आप प्लीज भी सेफ रहिए, बट अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाई कैसे? देयर लॉट ऑफ थिंग्स विच डॉक्टर्स रिकमेंड, विटामिन सी एंड ऑल द थिंग्स, बट ट्रस्ट मी, व्हेन यू लर्न रेकी, और जब रेकी सीखते हो और आप जब डेली सेल्फ हीलिंग करते हो, आपका इम्यून सिस्टम बरकरार रहता है. सर्दी जुकाम तक का प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, राइट. स्ट्रेस और एंजाइटी को हम दरकिनार नहीं कर सकते, बिकॉज यू डोंट नो स्ट्रेस और एंजाइटी कहाँ से आ जाए, राइट. बट आपका रिस्पॉन्स टुवर्ड्स स्ट्रेस और एंजाइटी बेहतर हो जाता है. अगर आप कोई मेडिकेशन ले रहे हैं तो आपका हीलिंग बेहतर हो जाता है. आपका एनर्जी और चक्रास को बैलेंस करता है. कम मोर ऑन द एनर्जी चक्रा बैलेंस, एनहांस एनर्जी लेवल्स. एक चीज याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने बुक पढ़ी होगी द सीक्रेट, राइट. उसमें मैनिफेस्टेशन के बारे में बताया गया है कि फाइनेंशियल मैनिफेस्टेशन, इमोशनल रिलेशनशिप मैनिफेस्टेशन, जो भी लेवल का मैनिफेस्टेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट है वो तभी होता है संभव व्हेन यू आर ऑपरेटिंग एट ए वेरी हाई फ्रीक्वेंसी और हाई वाइब्रेशन लेवल. आप कितना भी आस, बिलीव, रिसीव और एक्शन ले, बट अगर आपका एनर्जी लेवल हाई नहीं है तब आप कोई भी चीज मैनिफेस्ट करने के लिए दिक्कत हो जाएगी आपको, राइट. तो जब रेकी सीखते हो, आपका एनर्जी लेवल इज ऑलवेज ऑपरेट एट ए वेरी हाई एनर्जी लेवल, बट आपको रेकी सीख के डेली प्रैक्टिस करना जरूरी है. अक्सर लोग रेकी सीख जाते हैं, बट दे डोंट प्रैक्टिस इट डेली, राइट. आपका रिलीव्स पेन एंड डिस्कम्फर्ट. मैं अपना एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ, मैंने रेकी क्यों सीखा. सो जैसे मैंने बताया, आई वाज वर्किंग इन अ बैंकिंग इंडस्ट्री, और इन माय जर्नी कहीं ना कहीं तो एक बार ऐसा हुआ कि आई हैड अ वेरी सीवियर
wrist pain, right? मुझे बहुत ही सीवियर कलाई में दर्द था, तकरीबन 6 महीने से मैं जूझ रहा था इस पेन से. I went to lot of doctors, lot of orthopedists, but there was no respite, right? Pain was very very severe. It was very very severe to go through. तो मेरी जो immediate manager थी, she was a Reiki practitioner, right? And मुझे उस जमाने में एनर्जी हीलिंग पे कोई विश्वास नहीं था. उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि आप सिर्फ 2 दिन का हीलिंग के लिए आप बैठ जाइए हमारे साथ, जस्ट सिट फॉर 2 days ऑफ हीलिंग विद मी, एंड देखिए अगर आपको चेंज नहीं आ रहा था देन यू कैन गो टू योर ओन वे. सो सर केवल मैं 2 दिन बैठा उनके साथ हीलिंग सेशन के लिए. ट्रस्ट मी, इन द सेकंड डे आई कुड लिटरली सेंस द पेन गोइंग अवे इन द सर्कुलर मोशन, यानी कि मेरे रिस्ट से पेन निकलते हुए मुझे एहसास होने लगा. एंड वो तब का दिन है और आज का दिन है, मुझे आज तक वो पेन परसिस्ट नहीं हुआ है. तो ये मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस था. उसके बाद मुझे लगा कि आई शुड एक्सप्लोर माई सेल्फ मोर इनटू दिस एनर्जी हीलिंग टेक्निक. और उसके बाद आई हैव सीन लॉट ऑफ मिरेकल्स. इसलिए मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे या मैजिक आपको नहीं मिलेगा, राइट? इंट्यूशन बढ़ता है आपका, वेट लॉस के लिए बेहतर है, टॉक्सिन्स बॉडी से रिलीज होता है, राइट? वी ऑल नो कि हम लोग जो भी खान पान कर रहे हैं, वॉट एवर वी ईटिंग फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज, ये सारे पेस्टिसाइड लेडन है, केमिकल्स है इसमें, एंड वी कांट अवॉइड इट, राइट? हम खाना तो बंद नहीं कर सकते, राइट? बट अनोइंगली वी आर इम्बाइबिंग और वी आर ईटिंग लॉट ऑफ फूड्स जहाँ पे केमिकल्स बहुत ज्यादा है, राइट? इवन आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ द लीडिंग न्यूट्रिशनिस्ट इन इंडिया रिसेंटली, तो वो बता रहे थे कि जो आपके पास पालक आता है, राइट, पालक मेथी जो भी आता है आपके पास, वो आपके पास जब तक पहुंचता है तब तक उसका शेल्फ लाइफ खत्म हो चुका होता है, राइट? जितने भी न्यूट्रिएंट्स आपको लगता है कि मैं पालक खा रहा हूँ, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है, बट वो जब तक पहुंचता है बाजार में उसका नॉर्मली 1 या 2 दिन का होता है शेल्फ लाइफ. उसके बाद आप जो खा रहे हो इट इज टोटली डिवॉइड ऑफ न्यूट्रिशंस. डिवॉइड ऑफ न्यूट्रिशंस का मतलब है उसमें केवल पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स है. तो ट्रस्ट तो सो ये सारी चीजें अगर हम लोग खा रहे हैं तो टॉक्सिन जाहिर सी बात है अपने बॉडी में बढ़ेगा, राइट? तो जब आप अपने बॉडी से टॉक्सिन्स जब नहीं निकालोगे तो अगर टॉक्सिन्स बढ़ेगा तो क्रिटिकल इलनेस आने की संभावना ज्यादा है. दैट्स द रीजन आजकल हमारे देश में देखोगे तो बहुत सारे क्रिटिकल इलनेस की संभावनाएं बढ़ गई है, राइट? कैंसर हो गया, बाकी सारी चीजें हो गई, राइट? सो रेकी में आप जब रेकी सीखते हो तो दैट्स अ प्रोसेस कॉल्ड 21 days ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस, सेल्फ हीलिंग प्रोसेस, जहां पे आप 21 दिन के लिए अपने आप को हील करते हो, like this, something like this, right? You place your hands on 24 different points and you heal yourself. जब आप हील करते हो तो वेस्ट मटेरियल के जरिए सारे जितने भी टॉक्सिन्स है आपके बॉडी से रिलीज होना शुरू होते हैं, एंड यू बिकम टोटली टॉक्सिन फ्री, डिजीज फ्री. लिटरली यू फील दैट कि आपका बॉडी लाइट हो चुका है, राइट? दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ रेकी when you do self healing on yourself, right? Let us come to the most important points, chakras. जैसे भूमिका जी ने बताया था कि there are total 114 chakras, right? Unbelievable, right? हमारे पास टोटल 114 चक्रास है, उसमें 7 चक्रास आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चक्रास. यानी कि हमारे पाम्स में भी देयर आर स्मॉल स्मॉल चक्रास व्हिच आर रिवॉल्विंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट? तो ये चक्रास होते क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप एग्जिस्ट करते हो ये चक्रास के कारण एग्जिस्ट करते हो, राइट? अगर आपके पास आपकी जिंदगी में अच्छा चल रहा है इट इज बिकॉज ऑफ चक्रास, बुरा चल रहा है बिकॉज ऑफ चक्रास. तो चक्रास डिफाइन योर आइडिया, मतलब आपका जो जिंदगी का सफर है वो डिफाइन करता है. ये बैलेंस रहा तो आपकी जिंदगी बैलेंस रहेगी, इम्बैलेंस रहा देयर विल लॉट ऑफ anomalies, so a lot of problems will come in your life, right? आपने देखा होगा पुराने जमाने में जैसे ऋषि मुनि हुआ करते थे, उनके पास एक सर्कुलर मोशन में एक ऑरा हुआ करता था, राइट? या भगवान जी के आसपास ये हम सबके पास एक ऑरा फील्ड होता है, हम सबके पास, राइट? किसी किसी का 4 फीट होता है, किसी किसी का 8 फीट तक होता है, राइट? डिपेंड्स ऑन हाउ स्पिरिचुअली यू आर इवॉल्व्ड, हाउ फिजिकली यू आर बैलेंस्ड, राइट? सो ये सारे ये ऑरास आर एन एक्सटेंशन ऑफ चक्रास ओनली. और ये ऑरास का फोटोग्राफी भी आप कर सकते हो विद साइंटिफिक इक्विपमेंट्स. देयर आर लॉट ऑफ साइंटिफिक इक्विपमेंट्स लाइक कर्लियन फोटोग्राफी, कर्लियन कैमरास अवेलेबल नाउडेज, जिसके जरिए आप ये ऑरा फोटोग्राफी कर सकते हो. एंड ट्रस्ट मी, आप एक बार करवा के देखिएगा, यू विल फाइंड गेट माइंड ब्लोइंग रिजल्ट्स. अगर आपका ऑरा का कलर ब्राइट कलर है या गोल्डन येलो कलर है या ब्राइट कलर, बहुत अच्छा कलर, तेज कलर है, तो मतलब योर हेल्थ कंडीशन, इमोशनल कंडीशन इज वेरी गुड, एवरीथिंग इज गुड इन योर लाइफ. अगर आपका ऑरा कलर थोड़ा डार्क है, अगर आप डिस्कवर करते हो, पता चलता है, तो मतलब सम काइंड ऑफ डिसीज इज गोइंग टू मैनिफेस्ट इन योर बॉडी, राइट? ये सिंपल सा एक एनर्जी का सिद्धांत मैं आपको बता रहा हूँ. एक छोटा सा मैं एक्सपेरिमेंट भी बताना चाहूंगा आपको, जो आप ये सेशन के बाद कर सकते हो टू सी योर ऑरा कलर. ये मैं दिस इज वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स व्हिच आई ऑलवेज शेयर विद माय पार्टिसिपेंट्स. आपके सामने एक वॉल होना चाहिए, प्लेन व्हाइट कलर वॉल. उसके सामने आपका हाथ रखिएगा, जस्ट लाइक दिस, पाम्स, यानी कि आपके और हाथों के बीच में डिस्टेंस, और आपके हाथों और दीवार के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए. ट्राई टू लुक एट द वॉल थ्रू द 2 फिंगर्स, यानी कि 2 फिंगर्स के बीच में से आप वॉल को देखिएगा कंटिन्यूअसली फॉर 1 or 2 मिनट. धीरे धीरे आपके फिंगर्स में से लाइट्स एमिनेट होते हुए दिखेगा आपको, राइट? दिस इज वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स और वन ऑफ द प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स टू सी योर कलर ऑफ योर ऑरा. तो जब हम ये एक्सपेरिमेंट्स करते हैं हमारे ऑडियंस के साथ, तो किसी किसी का ऑरा कलर ब्राइट दिखता है, किसी को ब्लूइश व्हाइट दिखता है, गोल्डन येलो दिखता है, मतलब
आपका हेल्थ कंडीशन, इमोशनल स्पिरिचुअल कंडीशन बहुत अच्छा है। किसी किसी पार्टिसिपेंट से कभी कभी हमको ब्राउन कलर दिखता है, रेड कलर दिखता है, राइट, मतलब देयर इज सम हेल्थ इश्यूज, उसको आपको करेक्ट करना है, राइट। तो विल कम टू दैट पार्ट आल्सो। मैं थोड़ा सा आपकी बैकग्राउंड सेट कर रहा था। सो दिस देयर आर 7 चक्रास जो सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी सेंटर्स है। हर एक चक्रा का इंपॉर्टेंस है। This chakra is connected to your organs of the body, or you can say emotions of the body also, right? आपके बॉडी पार्ट्स और ऑर्गन्स से भी लिंक्ड होता है ये चक्रास। ये चक्रा बैलेंस रहा आपके जिंदगी हेल्थ, इमोशनल वाइज, स्पिरिचुअली वाइज, फाइनेंशियल वाइज सब कुछ बैलेंस होगा। इम्बैलेंस हुआ तो उस बंदी में, उस व्यक्ति में इमोशनल इश्यूज आएगा, फाइनेंशियल इश्यूज आएगा, राइट, और एनी फिजिकल एलिमेंट्स कैन मैनिफेस्ट। तो लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन ये चक्रास क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या होता है, राइट। सबसे पहला चक्र है रूट चक्र, मूलाधार चक्र, राइट। लाल कलर का चक्र होता है, आपके टेल बोन के एंड में होता है। ये आपका इस चक्र को हम हिंदी में कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, सर्वाइवल चक्र, राइट। ये अगर आप मटेरियल वर्ल्ड से जुड़े हैं तो ये चक्रा बैलेंस होना बहुत जरूरी है, राइट। ये चक्रा नॉर्मली सारे चक्रा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। चक्रा इम्बैलेंस होने का मतलब है चक्रास ने अपना शेप खो दिया है, राइट, या तो वो जैम हो गए एक तरीके से, राइट। तो चक्रास इम्बैलेंस कहा जाता है उसको। जैसे बिल्डिंग का बेस होता है वैसे ही आपके ह्यूमन बॉडी का आधार है, मूल आधार, राइट। ये आपके ये अगर इम्बैलेंस रहा, द पर्सन विल हैव लॉट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी नहीं होगा उसकी जिंदगी में, करियर स्टेबिलिटी नहीं होगा, बिजनेस स्टेबिलिटी नहीं होगा, रिलेशनशिप स्टेबिलिटी नहीं होगा, राइट। वो हमेशा सेल्फ एस्टीम लो होगा, हमेशा पैसों की किल्लत होगी हमेशा, राइट। तो ये मूलाधार का एक क्वालिटी है, ये मटेरियल वर्ल्ड से ताल्लुक रखता है एक तरीके से। अगर ये बैलेंस रहा, यू विल हैव नो प्रॉब्लम विद सर्वाइवल इश्यूज, राइट। यू विल हैव लॉट ऑफ वेल्थ, लॉट ऑफ स्टेबिलिटी इन लाइफ, रिलेशनशिप हो, फाइनेंशियल हो, करियर वाइज हो, सारा स्टेबिलिटी इस मूलाधार चक्र से आएगा। ये मूलाधार चक्र इज लिंक्ड टू योर लेग्स एंड आल्सो योर लोअर बैक। तो अगर आप ये मूलाधार चक्र इम्बैलेंस है, द पर्सन विल हैव लोअर बैक पेन्स, लेग पेन्स, नी जॉइंट पेन्स, राइट। इसको बैलेंस करेंगे तो सारी चीजें भी ऑटोमेटिकली सॉल्व होना शुरू हो जाता है, राइट। नेक्स्ट इज स्वादिष्ठान चक्र, सेक्रल चक्र। ये चक्र जेनेटल्स के पीछे होता है, मूलाधार चक्र के थोड़ा ऊपर स्थित होता है। ऑरेंज कलर, इसका एलिमेंट वाटर होता है। मूलाधार चक्र जो मैं लास्ट चक्र कवर किया था उसका एलिमेंट अर्थ होता है, राइट। दैट्स द रीजन हम पुराने जमाने में कहते थे कि जमीन पे बैठ के भोजन कीजिएगा, राइट, या नंगे पैर आप गार्डन में चलिएगा या जमीन पे चलिएगा, तो ये मूलाधार चक्र बैलेंस रहता है। जो आज के दौर में हम लोग ने जमीन पे बैठ के खाना खाना तो छोड़ दिया है, राइट, वी हैव यूज्ड डाइनिंग टेबल्स, तो कहीं ना कहीं तो वो एक चीज हम मानते थे। स्वादिष्ठान चक्र, स्वादिष्ठान चक्र का जैसे इसका नाम है स्वाद, ये स्वाद से रिलेटेड है एक तरीके से, राइट। जैसे कि आपके जिंदगी में आपको पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, धन संपत्ति चाहिए, वैभव चाहिए, अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए, ये सारी चीजें सेक्रल चक्र से आता है। ये इमोशनल चक्र है, राइट। ये इमोशनल चक्र है, रिलेशनशिप चक्र है एक तरीके से, राइट। ये आपका क्रिएटिविटी को भी मैनेज करता है। ये चक्र अगर बैलेंस रहा आपका, द पर्सन विल हैव हाई क्रिएटिव क्वोशंट, इमोशनली वेल बैलेंस्ड, रिलेशनशिप को बांधना संभालना बहुत अच्छे से जानते हैं, राइट। ये स्वादिष्ठान चक्र बैलेंस हुआ तो द पर्सन विल हैव आउट ऑफ द बॉक्स क्रिएटिव इमेजिनेशन, राइट। इम्बैलेंस रहा, द पर्सन विल हैव प्रॉब्लम्स इन हैंडलिंग इमोशंस, हैंडलिंग रिलेशनशिप्स। आपने देखा कुछ लोगों को इमोशनली दे आर टोटली इम्बैलेंस्ड, राइट, बिकॉज स्वादिष्ठान चक्र इम्बैलेंस्ड है। सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी आते हैं कभी कभी, फॉर फीमेल्स गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, मेल्स रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स, तो ये सारे प्रॉब्लम्स भी आना शुरू होता है। सोलर प्लेक्सस, ये हमारा तीसरा चक्र है, ये नाभि से 2 इंच ऊपर होता है। इसको हम लोग कहते हैं मणिपुर चक्र भी कहते हैं, इसको फायर चक्र भी कहते हैं। सोलर का मतलब है सोलर जैसे सन इज अ सोर्स ऑफ एवरीथिंग। तो जितना भी सोर्स आता है, पैसे का सोर्स, बिजनेस का सोर्स, एनी सोर्स कम्स फ्रॉम दिस चक्र ओनली, राइट। ये येलो इन कलर है, इसका एलिमेंट फायर है। जैसे हम लोग और ये आपके डाइजेशन को कंट्रोल करता है आपके बॉडी का, राइट। तो ये डाइजेशन चक्र भी कहते हैं उसको। आपने सुना होगा आयुर्वेद में जठर अग्नि रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ फूड इन द बॉडी एज पर आयुर्वेद, राइट। वो जठर अग्नि इसी सोलर प्लेक्सस से आती है, राइट। तो ये आपके जितने भी ऑर्गन्स है, राइट, जैसे कि किडनी, लिवर, इंटेस्टाइन, जो एलिमिनेशन प्रोसेस ताल्लुक रखते हैं, उन सब चीजों को सोलर प्लेक्सस बैलेंस करता है एक तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, आपका नॉर्मली 95% ऑफ एलिमेंट्स कम फ्रॉम इनडाइजेशन, राइट। इनडाइजेशन हुआ तो आपको मालूम है, एक तो मन की शांति नहीं होती, प्रोडक्टिविटी लो होता है, प्रोकास्टिनेशन होता है, इंसान लेजी हो जाता है, ये सारी चीजें कंपाइल हो जाते हैं। प्रोडक्टिविटी लो हो गया, सो एवरीथिंग गोज ऑन टॉस। तो आपका मनी, पावर, फेम, अथॉरिटी, राइट, ये सारे इस चक्र से आना शुरू होता है। आपका सेल्फ एस्टीम, सेल्फ इमेज,
ये सारा इस चक्र से होता है, राइट। अगर आपको इजिली पावर, फेम, मनी, अथॉरिटी आपकी जिंदगी में आना है, तो ये चक्र को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। आपका मूलाधार चक्र और मणिपुर चक्र, दो मेन चक्र है आपके मनी के लिए, राइट। नेक्स्ट इज हार्ट चक्र। ये आपके हार्ट के बीचों बीच होता है, यानी कि चेस्ट के बीचों बीच होता है, यू कैन से दैट। ये आपके चेस्ट और लंग्स को कंट्रोल करता है, राइट। जैसे हम एक्सपीरियंस, जब भी आप रेकी सीखते हो और जब आप इस चक्रास को बैलेंस करते हो, यू स्टार्ट फीलिंग दैट ब्यूटीफुल इमोशंस। आपको रियली जब आप हार्ट चक्रा बैलेंस होता है, यू कम टू नो द डिफरेंस बिटवीन इन्फैचुएशन एंड प्योर लव, राइट। अनकंडीशनल लव का फीलिंग्स आप शुरू फील करते हो, राइट। कंपैशन, जॉय, जो भी पॉजिटिव इमोशंस है वो सारे फीलिंग्स आना शुरू होता है, राइट। ये चक्र आपके लंग्स और हार्ट्स को संबंधित है। तो फिजिकल एलिमेंट्स क्या क्या आ सकते हैं उसमें, राइट, जैसे कि लंग टीबी से हार्ट हार्ट कैल्सिफिकेशन या हार्ट एलिमेंट्स, ये सारे इसके साइड इफेक्ट्स है अगर ये चक्र इम्बैलेंस रहा तो। अगर ये चक्र हार्ट चक्र इम्बैलेंस भी रहा तो द पर्सन विल बी नेगेटिवली इमोशन, राइट। नेगेटिव इमोशन आना शुरू होता है, जैसे गुस्से को पाल के रखना, जिस लोगों से दूरी बना के रखना, राइट। ये सारे नेगेटिव इमोशंस है, राइट। सो ग्रीन इन कलर। नेक्स्ट चक्र है थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र ये ब्लूइश कलर है, आपके थ्रोट के बीचों बीच होता है। ये आपका कम्युनिकेशन चक्र है। ये चक्र बैलेंस है, आई थिंक सो यू आर फ्रॉम द मास मीडिया इंडस्ट्री, तो आपके लिए थ्रोट चक्र को बैलेंस करना बहुत बहुत जरूरी है, राइट। अच्छा, थ्रोट चक्र बैलेंस रहा, यू विल बी ए मास्टर कम्युनिकेटर, राइट। देयर पीपल हु जस्ट वो उनके कहने भर से लोग प्रभावित हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। दे कैन कंट्रोल ए बिगर ऑडियंस सिर्फ उनके कहने मात्र से, उनके उनके वाणी में इतनी शक्ति होती है, राइट। तो थ्रोट चक्र आपके कम्युनिकेशन से, आपके सेल्फ एक्सप्रेशन से, राइट, आपके डिसीजन मेकिंग से, ये सारी चीजों और अथॉरिटी, ये सारी चीजों को बैलेंस करता है। थ्रोट चक्र इस कंट्रोल इस बैलेंसिंग योर माउथ, लैरिंग्स, थ्रोट एरिया को कंट्रोल करता है। आपने देखा होगा कुछ लोगों को, व्यक्तियों को, जैसे लता मंगेशकर, राइट। वेरी जब वो व्हेन शी सिंग्स अ सॉन्ग एवरीबॉडी आर मेस्मराइज्ड। थ्रोट चक्र हाईली बैलेंस। पुराने जमाने में जो ऋषि मुनि कभी कभी कुछ कहते थे, वरदान देते थे, तो सिद्ध भी हो जाता था। थ्रोट चक्र हाईली बैलेंस्ड। कुछ लोग व्यक्ति है जो उनको बात करने में दे स्टैमर और स्टटर, राइट। थ्रोट चक्र नॉट बैलेंस्ड। कुछ व्यक्ति है हमेशा दे लाई अ लॉट, दे क्रॉनिक लायर्स। थ्रोट चक्र इम्बैलेंस्ड, राइट। तो थ्रोट चक्र का महत्व, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग एंड कनेक्टिंग द डॉट्स कि किस तरह ये चक्र आपकी जिंदगी को बैलेंस करता है। सेकेंड लास्ट चक्र इज द थर्ड आई चक्र, राइट। ये आपका आज्ञा चक्र है। ये आपका फोकस का केंद्र है, आपके जो आईब्रोज के बीचों बीच स्थित होता है। ये आपके आईज देन ईयर्स एंड पीनियल ग्लैंड, इन सब चीजों को कंट्रोल करता है एक तरीके से, राइट। पीनियल ग्लैंड आपके ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। पीनियल ग्लैंड वैसा वो हिस्सा है जो जहाँ पे दवाइयाँ तक नहीं पहुँचती, राइट। बहुत सारी दवाइयाँ वहाँ पे पहुँचती भी नहीं पीनियल ग्लैंड में। तो आपके ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी को कंट्रोल करता है। आपका फोकस वगैरह थर्ड आई चक्र से ही आता है, कंसिस्टेंसी, कॉन्सेंट्रेशन, राइट। सो तो आपका इसमें प्रॉब्लम क्या, अगर ये चक्र आप इम्बैलेंस रहा, द पर्सन विल हैव ब्लाइंडनेस, डेफनेस। कैन यू म्यूट योरसेल्फ? Priya, please unmute yourself. I request you, Priya. One second, just a minute. पाण्यासारखं आलंय परत. हा असं म्हणलं. त्यांचा फोन आलेला. हा काय बोलला काम. Yeah, allow me a minute, one second. Bhumika, can you mute her, Priya? She haven't muted. अरे प्रिया को म्यूट करो ना, आप तो सबको डिस्टर्ब कर रहे हो। Just a second. She left. Hello. Yeah, I told her, yeah, it's okay. I'll just start this. I'm really sorry for that. Okay. Yeah, allow me a minute. I'm really sorry for the disturbance. One second.
Okay. Yeah, really sorry for the disturbance. Okay. Third eye chakra is on the center of the forehead. जैसे कि ये फोकस का केंद्र है आपका, तो आपका फोकस, आपके वर्क का फोकस, आपकी जिंदगी का फोकस यहीं से आता है, आपका इंटेलेक्ट फोकस यहीं से आता है, राइट? एबिलिटी टू एनालाइज, इंट्यूशन, इमोशनल इंटेलिजेंस। आज के दौर में आईक्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, राइट? सो आपका सारा ये थर्ड आई चक्रा से ही आता है। इन केस चक्रा इज इम्बैलेंस, देन ब्रेन ट्यूमर्स, लर्निंग डिसेबिलिटीज, डिप्रेशन, ब्लाइंडनेस, ये सारी चीजें थर्ड आई चक्रा से आना शुरू होता है, राइट? तो थर्ड आई चक्रा को आपके सक्सेस का या नॉलेज का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, राइट? क्राउन चक्रा, क्राउन चक्रा यानी कि सहस्रार चक्रा, लोटस विद 1000 पेटल्स, राइट? संस्कृत में इसका विवरण है। सो ये आपके क्राउन से थोड़ा ऊपर स्थित होता है, राइट? दिस इज डीलिंग विद डिविनिटी, राइट? ये आपके स्पिरिचुअल कनेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप बेसिकली हम कहते हैं कि हर व्यक्ति को एक स्पिरिचुअल कनेक्ट या ग्राउंडिंग होना बहुत बहुत जरूरी है, राइट? सो ये स्पिरिचुअली डील करता है। आपका ये चक्र जब बैलेंस होता है, यू विल बी टोटली इन जॉयस स्टेट, राइट? यू विल स्टार्ट सीइंग द बिगर पिक्चर इन लाइफ। तो ये आपका डिविनिटी से कनेक्ट करता है आपको एक तरीके से। तो ये चक्रा बैलेंस होता है तो सारे चक्रास ऑटोमेटिकली बैलेंस होना शुरू होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये मैंने आपके चक्रास के बारे में बताया। इवन दिस चक्रास आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। जैसे आपका क्राउन चक्रा है, क्राउन चक्रा इज आल्सो डीलिंग विद स्टेबिलिटी ऑफ योर माइंड, ऑफ योर माइंड। मूलाधार आल्सो इज डीलिंग विद स्टेबिलिटी, राइट, ऑफ एंटायर बीइंग। तो क्राउन चक्रा और आपका मूलाधार चक्रा दोनों इंटरलिंक्ड होते हैं, राइट? आपका आज्ञा चक्र और आपका स्वादिष्ठान चक्र, ये दोनों भी इंटरलिंक्ड होते हैं, राइट? तो आपका फोकस रहा तो आपकी जिंदगी में पैसा, मनी, फेम, रिलेशनशिप सब स्टेबल होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपका थ्रोट चक्र और आपका सोलर प्लेक्सस, जो नाभि वाला चक्र है, वो दोनों भी इंटरलिंक्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका पेट में डाइजेशन ठीक नहीं हुआ, राइट? तो आपके थ्रोट से अग्नि आना शुरू होता है। आई एम ट्राइंग टू इंटरलिंक द सीक्वेंस फॉर यू, राइट? तो आपका थ्रोट चक्र एंड द सोलर प्लेक्सस भी इंटरलिंक्ड होता है। आपका केवल हार्ट चक्र अकेला रहता है हमेशा, राइट? आपको मालूम होगा योर हार्ट थिंग्स अलोन, आपने कहावत सुनी होगी, राइट? तो ये हार्ट चक्र हमेशा अलोन रहता है, अलग रहता है इन सबसे, राइट? वो किसी चक्र से लिंक्ड नहीं होता है। तो थोड़ा सा मैंने आपको कनेक्ट बताना शुरू कर दिया है। आई हैव टोल्ड एग्जैक्टली द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल दिस चक्रास। ट्रस्ट में हमारी जिंदगी में जो भी उथल पुथल आती है, जो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आ रही है, इमोशनल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ये सारे आपके चक्रास के अलाइनमेंट ठीक ना होने की वजह से, इम्बैलेंस होने की वजह से ही होता है, राइट? तो वेरी इंपॉर्टेंट टू बैलेंस द चक्रास। चक्रा इम्बैलेंस हुआ तो आपको उथल पुथल होगा। अभी कैसे बैलेंस करेंगे इस चक्रास को? बहुत सारे फूड्स है, बहुत सारे भोजन है, राइट? यानी कि आपके मूलाधार चक्र की रेड कलर का फूड्स खा सकते हो आप, जैसे कि टोमेटोज है या राइट अनार है। तो ये वैसे किस्म के फूड्स आपको मिल जाएंगे इंटरनेट में, इफ यू चेक दैट। सेकंड है बीज मंत्र। हर एक चक्र के बीज मंत्र होते हैं, उसको अगर आपने रिपीटेडली उसको चैंट किया तो भी वो चक्रास धीरे धीरे बैलेंस होते हैं, राइट? लास्ट, द मोस्ट पोटेंट, द मोस्ट पावरफुल टेक्निक ऑफ बैलेंस चक्रास इज रेकी। रेकी आप सीखते हो, जिंदगी भर रेकी पावर आपके पास रहता है, एंड कैन बैलेंस योर एंटायर ह्यूमन फिजियोलॉजी, राइट? तो ये चक्रास को धीरे धीरे बैलेंस कर सकते हो, एंड ऑब्वियसली यू कैन आल्सो हील अदर्स एंड सर्व द सोसाइटी आल्सो, राइट? सो लेट अंडरस्टैंड कि रेकी सीखते कैसे हैं, माय डियर फ्रेंड्स। लेवल 1 रेकी, फर्स्ट डिग्री रेकी हीलर आप बन जाते हो, जहां पे आप स्पर्श चिकित्सा से आसपास के लोगों को हील कर सकते हो, राइट? ये पहला रेकी हीलिंग होता है। यहाँ पे प्रोसेस होता है अट्यूनमेंट का। अट्यूनमेंट क्या होता है हम समझ लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अट्यूनमेंट का ये मतलब होता है जैसे रेडियो एनर्जीज या टीवी के जो फ्रीक्वेंसीज होते हैं, या तो रेडियो के जो फ्रीक्वेंसीज होते हैं, वो यू कैन नॉट सी इट, बट ये इट इज एग्जिस्टिंग एवरीवेयर, राइट? केवल रेडियो का रिसीवर या ट्यूनर चाहिए होता है टू कैच दैट फ्रीक्वेंसी एंड द रेडियो स्टार्ट्स फंक्शनिंग। सिमिलरली देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड अट्यूनमेंट, जहाँ पे द रेकी मास्टर आपको एनर्जी सेंड करते हैं डिस्टेंस से। यानी कि मैं अगर मुंबई में बैठा हूँ, I can send the attunement to you sitting in Delhi, Bhopal, Bangalore, anywhere in India, right? So the master sends you the Reiki energy attunement. आप attunement अपने क्राउन से रिसीव करते हैं, आपके हाथों में एनर्जी फील होता है, and then you start healing yourself. Once you start feeling energy in your hands, मतलब आपको Reiki attunement मिल चुका है. You become a Reiki first level degree healer. When you place on your hands on your different parts of the body, you start feeling that heat, warmth or vibrations, right? तो ये पहला फर्स्ट डिग्री रेकी हीलर आप बन जाते हो लेवल 1 पे। लेवल 2 हीलर आप बॉडी, इमोशन, सोल लेवल पे हील करते हो लोगों को। यहाँ पे डिस्टेंस हीलिंग आप सीख जाते हो, राइट? यू लर्न डिस्टेंस हीलिंग ऑन लेवल 2। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आई एम सिटिंग इन बॉम्बे, आई कैन हील एनीबॉडी अक्रॉस द ग्लोब। यानी कि मैं मुंबई बैठा हूँ तो मैं किसी को यूएस में, कनाडा में,
बैंगलोर, दिल्ली, कहीं पे भी लोगों को मैं डिस्टेंस पे हील कर सकता हूँ, हीलिंग सेंड कर सकता हूँ थ्रू सिंबल्स, राइट? व्हाट आर सिंबल्स? सिंबल्स आर जस्ट लाइक अमेजॉन कुरियर बॉयज। बेसिकली मैं एक थोड़ा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि अमेजॉन कुरियर एजेंट्स को हम क्या कहते हैं कि ये कंसाइनमेंट को आपको ए से बी लोकेशन में ले जाना है। तो आपकी जो डिस्टेंस हीलिंग सिंबल्स का काम भी वही होता है। दे सेंड द हीलिंग पावर्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। केवल हमको जो क्लाइंट होता है उनका फोटोग्राफ चाहिए होता है, उनका एड्रेस चाहिए होता है और उनका परमिशन चाहिए होता है टू सेंड द हीलिंग टू द पर्सन। तो बहुत सारे सिंबल्स देते हैं हम आपको। नॉर्मली वी टीच यू टोटल 8 डिस्टेंस हीलिंग सिंबल्स हम सिखाते हैं आपको। दिस में लिंक टू इमोशंस, रिलेशनशिप्स, हेल्थ रिलेटेड, हर सिंबल का अलग अलग फंक्शनैलिटी होता है, राइट? तो ये सारे सिंबल्स आप सीखते हैं। 8 सिंबल्स हम सिखाते हैं। आप कहीं भी स्कूल में जाएंगे, किसी भी रेकी स्कूल में, दे विल टीच यू ओनली 3 सिंबल्स, वी टीच यू 8 डिस्टेंस हीलिंग सिंबल्स, जो बहुत बहुत पावरफुल होते हैं। तो आप घर बैठे बैठे ही लोगों को हील करना शुरू कर सकते हो। दैट्स द बेस्ट पार्ट, राइट? एंड इससे आपको स्पिरिचुअल एबिलिटी बढ़ता है, साइकोलॉजिकल लेवल पे हीलिंग कर सकते हो, पास्ट कर्मा हीलिंग भी शुरू कर सकते हो आप, राइट? यानी कि आपका इस लाइफ इस लाइफ का जो प्रॉब्लम्स है, हो सकता है आपके पास्ट लाइफ का कुछ इश्यूज हो जो आपने कैरी फॉरवर्ड किया हो, राइट? उन सबको भी आप हील करना शुरू कर सकते हो थ्रू रेकी, राइट? तो लेवल 2 में आप डिस्टेंस हीलिंग शुरू करते हो। लेवल 3A में यू बिकम ए रेकी मास्टर, यानी कि आप को एक और सिंबल दिया जाता है जिसके द्वारा आप रेकी मास्टर बन जाते हो। एंड टिल लेवल 3A यू बिकम ए रेकी हीलर। लेवल 3B में यू बिकम ए रेकी टीचर, रेकी ट्रेनर, यानी कि आप लोगों को ट्रेन भी करना शुरू कर सकते हो लेवल 3B में, राइट? इन एडिशन टू हीलिंग यू आल्सो बिकम ए रेकी टीचर। इसके बाद लास्ट स्टेप आता है रेकी ग्रैंड मास्टर का, बट उसके लिए आपको बहुत सारा हीलिंग्स करना पड़ता है। यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ केस स्टडीज। मैंने इसलिए रखा नहीं है वो स्लाइड स्पेशली आपके लिए। सो एज गुरु स्कूल्स, हमारे इनिशिएटिव जैसे हमने बताया, हम वी ऑलरेडी ट्रेन मोर देन 2000 participants across India and more than 3000 people across India we have healed also, right? Or we are associated with IARP, International Association of Reiki Practitioners. तो जब अगर आप इनकेस आप सीखना चाहते हो, जुड़ना चाहते हो हमारे साथ रेकी सीखने के लिए, तो आपको सर्टिफिकेशन मिलता है एफिलिएटेड विद IARP, राइट? बहुत सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स है who also practicing in hospitals, बहुत सारे डॉक्टर्स है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, they are learning Reiki from us, professionals, housewives, entrepreneurs, everybody is learning Reiki from us in this today's age, right? To learn Reiki for yourself, for your personal growth, अगर आपको healer बनना है, then there's different thing altogether, right? And one thing is that we always believe in quality, right? So let us understand before we end this session, थोड़ा सा मैं एक हमारा कुछ प्राइजेस बता देता हूँ in case you are interested in joining our Reiki courses. ये हम लोग डिस्टेंस पे ही सिखाते हैं, आप जूम पे सीख सकते हो, जैसे हम लोग अभी सेशंस कर रहे हैं वैसे ही हम लोग रेकी भी सिखाते हैं। बहुत ही आसानी से रेकी सीखते हो आप, राइट? तो लेवल 1 ये 6 to 8 आवर्स का कोर्स है। इसका कॉस्ट है 3999। नॉर्मली इसका एनर्जी एक्सचेंज कहते हैं, वन टाइम फीस है ये, सर्टिफिकेशन कॉस्ट है। हम केवल आपको सर्टिफिकेशन देके टाटा बाय बाय नहीं करते हैं, लाइफ टाइम के लिए आप जुड़ते हैं हमारे साथ। तो केवल रेकी नहीं सीखते हैं, बहुत सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट भी सीखते हैं हमारे साथ, राइट? लाइक मेडिटेशन कोर्सेज, ग्राउंडिंग हीलिंग कोर्सेज, एनर्जी सर्कल्स कैसे बनाना है, टैरो रीडिंग कैसे करना है, वो सारी चीज़ें भी आप टाइम टू टाइम बेसिस पे सीखते हो हमारे साथ, राइट? सो इसमें हमारे साथ लर्न एंड अर्न फैसिलिटी भी है। अगर आपको हमारे प्लेटफॉर्म में जुड़ के रेकी लेवल 1 से आपको अर्निंग भी करना है तो वो भी कर सकते हो, राइट? तो लेवल 1 फॉर 3999। लेवल 1 में हम एक और कोर्स आपको ऐसे बोनस देते हैं विच इज कॉल्ड टेलीपैथी। टेलीपैथी इज समथिंग लाइक आई वांट टू सेंड ए मैसेज टू माय ब्रदर staying in Pune, right? Without talking to him, without calling him, right? Through mentally, I want to send a message called telepathy, which is worth 2500, which is given as free of cost in level 1. Level 2 में जैसे मैंने बताया आपको 8 डिस्टेंस हीलिंग सिंबल्स होता है एंड बाकी सारे बोनसेस इंटैक्ट है। लेवल 2 में भी हम आपको एक और करना रेकी हीलिंग का एक एक्स्ट्रा कोर्स है विच इज वर्थ 3000, वो भी आपको ऐसे बोनस देते हैं। लेवल 2 फॉर 5000। सो आज के सेशन के लिए स्पेशली ऐसे स्पेशल डिस्काउंट, नॉर्मली वी गिव ओनली 500 रुपीज डिस्काउंट फॉर पीपल हु आर ज्वाइनिंग। आज के लिए ऐसे स्पेशल बोनस आई वांट टू गिव यू फॉर रेकी लेवल 1 इन केस यू वांट टू लर्न फ्रॉम अस विल बी 3000 and level 2 will be for 4000.